Hello, friends. I hope and wish that you all are doing good and your families are safe and healthy. So, irrespective of various thoughts that are arising in our mind, like when the exams will be held and when we all will be able to appear for it in a cool and calm state of mind, one thing that we have to keep in our mind is that we have to keep on studying. As one fine day, we have to appear for the exams. So, with such mindset, positive mindset, let us start our studies. गणपति पापा मोरिया, सरस्वती माता की जय. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेक्रा यानी कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956. इसका जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 79. Kshitija has recently started her articleship with a reputed CA firm. Her first assignment involves understanding the working of stock market, exchange and the transactions related thereto. Since she is part of your team, your manager has assigned you with the responsibility to make sure that Kshitija is aware of the basic terms relating to securities market. In view of the Securities Contract Regulation Act, SECRA, ब्रीफ योर टीममेट अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स. तो यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे हमें ये जो 3 टर्म है, ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव, इनका हमें डेफिनेशन देना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है. तो सबसे पहले फर्स्ट है ऑप्शन इन सिक्योरिटीज़. एज पर सेक्शन 2D ऑफ सेक्रा, ऑप्शन मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ अ राइट टू बाय और सेल और राइट to buy and sell securities in future and includes तेजी मंदी, गली, पुट, कॉल और पुट एंड कॉल इन सिक्योरिटीज़. तो ये हम जो डेरिवेटिव्स एसएफएम चैप्टर में एसएफएम सब्जेक्ट में भी जो पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स चैप्टर, वही वाला डेफिनेशन है. उससे भी आप सोच समझ के लिख सकते हैं. ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू विच अ सेलर गिव्स द बायर अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. एक हक मिलता है और वो ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है कि उसको वो करना ही फॉलो और फुलफिल करना ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है. सेल अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन अ सेट टाइम पीरियड. These contracts are essentially derivatives since they derive their value from an underlying security on which the option is based. With options, one can tailor his position according to his own situation and stock market outlook. तो ये क्या है, टेलर मेड है. ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसके अंदर नहीं बना होता है कि इतना जैसे पर्टिकुलर लेने ही होंगे. ये ऑप्शन है. ऑप्शन में तुम्हारे चॉइस के ऊपर तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और उसमें एंटर हो सकते हो. दूसरा है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स. सेक्शन 2I ऑफ सेक्रा डिस्क्राइब द spot delivery contracts to mean a contract which provide for actual delivery of securities and payment of a price therefor either on the same day as the date of the contract or on the next day. The actual period taken for dispatch of securities or the remittance of money therefore through the post being excluded from the computation of the period aforesaid if the parties to the contract do not reside in the same town or locality. यानी कि एक्चुअल डिलीवरी और ऑफ सिक्योरिटीज़ होता ही है इसमें, और पेमेंट ऑफ प्राइस जो होता है वो या तो सेम डे हो जाता है या फिर अगले दिन होता है. और जो पीरियड जो टेकन होगा ना, वो अगर सेम टाउन और कंट्री लोकेलिटी में अगर जो पार्टीज है वो नहीं है, तो जो पोस्ट जो बीच का पीरियड होगा जिस वजह से वो टाउन और लोकेलिटी तक पहुंच रहे हैं, वो वाला हम एक्सक्लूड करेंगे. वो टाइम पीरियड हमें एक्सक्लूड करना है. Transfer of securities by the depository from account of beneficial owner to the account of another beneficial owner when such securities are dealt with by the security. तो जो depository होता है वो बीच का पर्सन होता है, तो वो ओरिजिनल बेनिफिशियल ओनर से दूसरे बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफ़र करेगा. नेक्स्ट डेफिनेशन आ रहा है रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2EA of SECRA state the meaning of ready delivery contracts to mean a contract which provide for delivery of goods and payment of price thereof either immediately or within such period not exceeding 11 days after the date of the contract and subject to such conditions as central government may by notification
in official gazette specify in respect of any goods the period under such contract not being capable of extension by the mutual consent of parties thereto or otherwise। तो ये जो डेफिनेशन इसमें जो है रेडी डिलीवरी, उसमें क्या था, जो स्पॉट डिलीवरी था उसमें या तो उसी दिन होता है या उसके नेक्स्ट डे होता है, लेकिन रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, या तो इमीडिएट बेसिस पे होगा और या फिर नॉट एक्सीडिंग 11 डेज ऑफ द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट के विद इन 11 दिन के अंदर वो पेमेंट सेटल होना चाहिए। और इसके ऊपर बाकी कंडीशंस भी लगा सकता है सीजी, जो कि वो एक नोटिफिकेशन थ्रू ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट any such contract is performed either wholly or in part by realization of any sum of money being the difference between the contract rate and the settlement rate or clearing rate or the rate of any offsetting contract। यानी कि जो भी सम रियलाइज होगा उसका क्या होगा, जो डिफरेंस होगा किसके बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट रेट जो थी वो और फिर सेटलमेंट डेट या क्लियरिंग डेट या जिस दिन ऑफसेटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस तारीख की जो रेट होगी उनका डिफरेंस जो होगा वो रियलाइजेशन वाला अमाउंट होगा। और सेकेंड है बाय एनी अदर मीन्स व्हाटसोएवर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एक्चुअल टेंडरिंग ऑफ गुड्स कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट ऑफ फुल प्राइस देयर ऑफ इज डिस्पेंस्ड ऑफ विथ देन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। Ready delivery contracts are also known as cash trading or cash transactions, which are either settled on the same date or within a short period up to 11 days. Under this, most of the sale and purchase transaction which the contracting parties is settled by paying for goods immediately and the delivery of goods taken instantly। तो तभी के तभी जैसे कैश बेसिस पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसी तरह ये भी होता है। डेरिवेटिव, लास्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव का। एज पर सेक्शन 2AC ऑफ सेक्रा, डेरिवेटिव्स इंक्लूड अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको मेजरली डेट इंस्ट्रूमेंट वाला जो है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइजेस और index of prices of underlying securities, common derivatives, such other instruments as may be declared by CG to be derivatives। तो derivatives में ये चार चीज़ें आती है, ये याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। अपॉन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय सेबी regarding the listed securities of Blue Rock Limited at Guwahati Stock Exchange, SEBI has passed an order to delist the securities of the company from the said stock exchange। तो सेबी क्या किया है, उसने पास कर दिया ऑर्डर कि जो सिक्योरिटीज़ है इस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी ब्लू रॉक लिमिटेड की कंपनी की, उसकी सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट कर दिया जाए। ब्लू रॉक लिमिटेड इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी, एडवाइज द कंपनी ऑन द फर्दर स्टेप दैट द कंपनी कैन टेक अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी टू डीलिस्ट द सिक्योरिटीज़। तो अब कंपनी आगे क्या स्टेप ले सकती है वो हमें बताना है। एज पर द फैक्ट्स of the given case in the question stated above, the aggrieved company यानी कि ब्लू रॉक लिमिटेड में अपील टू द सेट यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल against the decision of SEBI within 45 days from the date from which the order has been passed unless further extension has been granted by SET on reasonable grounds। यानी कि within 45 days जैसे ही उसको पता चलता है कि ऑर्डर पास कर दिया है सेबी ने, उसके विदिन 45 डेज़ के अंदर जो कंपनी है वो सेट के पास अपील कर सकती है। लेकिन अगर सेट रीज़नेबल ग्राउंड्स पे, यानी कि अगर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ कि डीले था, जेन्युइन था, तो वो कंडोन कर सकती है ये डीले। एज पर सेक्शन 23L द ट्राइब्यूनल यानी कि सेट शेल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी कि ROBH जो हम बोलते हैं टू द रेस्पोंडेंट एंड मे पास ऑर्डर कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द डिसीजन ऑफ सेबी। यानी कि सेट जो होगा वो पहले तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा रिस्पोंडेंट को, और फिर ऑर्डर को या तो वो कंफर्म कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है और या फिर सेट असाइड कर सकता है सेबी के ऑर्डर को।
सेट shall also send a copy of its order to every party to appeal. जो अपील किए हैं उन सबको एक कॉपी दी जाएगी ऑर्डर पास होने पर, और कंसर्न्ड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भी दिया जाएगा. ऑल्सो the company Blue Rock Limited should be assured that a speedy decision shall be taken, since the tribunal is required to dispose of every 6 months from the date of the receipt of appeal. तो इसमें लिखा गया कि कंपनी भी जो है उसको भी एश्योरेंस दी जा सकती है कि वो आराम से सोच समझ के धीरज में बैठ सकती है, क्योंकि जो सेट होगा उसको भी 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि उसको अपील इतने में डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए, तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. तो ये है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. इस क्वेश्चन के ना मतलब ये एक ही क्वेश्चन होगा, इसके जो आंसर है एक ही आंसर होगा, और लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो 3 बातों के लिए हो सकता है. तो ये अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें भी ये आंसर लिखना है. अगर समझिए इसमें डिविडेंड के बारे में पूछा है तो भी यही आंसर होगा, और समझिए अगर म्यूचुअल फंड के रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका भी सेम यही आंसर होगा. ठीक है, तो हम आंसर पढ़ते हैं. सेक्शन 27 ऑफ सेक्रा सेट्स आउट दैट इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटीज बीइंग यूनिट्स. यूनिट्स के किस किस में होगा, अगर वो म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है तो, और या फिर सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव्स भी आ गया इक्विटी शेयर्स के लिए, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले भी आ गए. और अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हुज नेम अपीयर्स on the books of collective investment scheme issuing the said security to receive and retain any income in respect of units or other instrument issued by the collective investment scheme declared by the collective investment scheme in respect thereof for any year, notwithstanding that the said security being units or other instruments issued by collective investment scheme has already been transferred by him for consideration, unless the transferee who claims income in respect of units or other instruments issued by the collective investment scheme from the transfer or has lodged the security, all other documents relating to transfer which may be required to the collective investment scheme for being registered in his name within 15 days of the date on which income in respect of such units or other instrument became due. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या म्यूचुअल फंड या फिर डिविडेंड के केस में जिसका भी नाम उस कंपनी के बुक्स में लिखा होता है, उसको हक है होल्डर को कि वो रिसीव कर सके और रिटेन कर सके ऐसी वाली इनकम जो उस साल के लिए जनरेट की गई है, डिक्लेयर की गई है. लेकिन कब वो नहीं करेगा, रिसीव नहीं कर सकता, जब जिसने ट्रांसफरी जो है, ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी आपको पता ही होगा, जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो ट्रांसफरर, और जिसके हित में जिसके नाम पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफरी. तो अगर समझो ट्रांसफरी जो है ना सामने वाले ने, अगर उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलेटेड हैं इस ट्रांसफ़र के रिलेटेड हैं, यानी कि ट्रांसफ़र डीड, अगर वो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर वो फाइल कर देता है कंपनी को, तो विद इन 15 days ऑफ सच इनकम बिकेम ड्यू. तो तब से अगर 15 दिन के अगर वो सबमिट कर देता है तो ट्रांसफरी को मिलेगा, एल्स ट्रांसफरर के नाम पे ही मिलेगा. ये पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. सेबी हैज़ आस्क्ड जयपुर स्टॉक एक्सचेंज टू फर्निश देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स for period of 1st April 2016 to 31st March 2018 within 30 days of the receipt of the communication by the stock exchange. The communication was received by the company on 30th April 2018 and no document were furnished to SEBI in reply to the notice till 15th May 2018. Can the stock exchange be penalized for this inaction? तो SEBI ने डॉक्यूमेंट मांगे स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन उसने फुल वो फाइल उसको नहीं किए हैं, तो उसका बताइए अभी क्या होगा. एज पर सेक्शन 23A ऑफ सेक्रा, इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिटर्न्स, रिपोर्ट टू अ recognized stock exchange within the time specified in the listing agreement or conditions or bylaws of the stock exchange, he shall be punishable with a fine
of at least 1 lakh rupees which may extend to 1 lakh rupees per day during which such failure continues, subject to maximum of 1 crore. Thus, Jaipur Stock Exchange shall be liable to the aforesaid penalty under 23A. यानी कि पेनल्टी उस पर लगेगी या तो 1 लाख या फिर विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो होगी 1 करोड़। तो ये पेनल्टी है और ये 2-3 जगह पे सेम पेनल्टी आप अगर बुक्स को नोट्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 104 पर आएंगे, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्रा का, उसके भी पार्ट 2 को हम देख रहे हैं। एक्सप्लेन द पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेबी अंडर द सेक्रा एक्ट व्हाइल अप्रूविंग scheme of corporatization and demutualization submitted by RSEs so that there is segregation of ownership and management from the trading rights of member of such stock exchange। यानी कि पावर्स कौन कौन सी पावर्स सेबी एक्सरसाइज कर सकता है जब वो कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन कर रहा हो, उस RSE ने जो उसके लिए सबमिट किए हों डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें वो क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है। SEBI has been empowered under subsection 2, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टू अप्रूव द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो सेबी को एम्पावर कर दिया गया, जैसे सीजी के पास जो पावर होती है वो उसने सेबी को ऑथोराइज कर दिया है। सेबी कैन रिजेक्ट द प्रपोजल स्कीम इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक टू अप्रूव द स्कीम। तो ठीक है, अगर वो रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसको ट्रेड, ये जो लाइन है ये आप मोस्ट ऑफ द आंसर्स में सेक्रा के आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड में नहीं है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो डिसअप्रूव भी कर सकता है। बिसाइड्स दीज जनरल पावर सेबी हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक पावर्स भी हैं उसके पास। ये तो जनरल पावर्स हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक पावर्स भी हैं व्हाइल अप्रूविंग द स्कीम, जो कि ऑर्डर इन राइटिंग में वो दे सकता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्ट है, उसके स्पेशल पावर्स क्या है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है द वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर ऑल्सो द स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ द RSE। तो बोल सकता है कि वोटिंग राइट्स जो है शेयर होल्डर के, वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, जो स्टॉक ब्रोकर भी होने चाहिए, शेयर होल्डर स्टॉक ब्रोकर भी होने चाहिए। द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर और स्टॉक ब्रोकर ऑफ द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि जो शेयर होल्डर या स्टॉक ब्रोकर हैं वो लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे गवर्निंग बॉडी के ऊपर, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग वो अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी बता सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ द RSE टू बी अपॉइंटेड ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्निंग बॉडी। तो मैक्सिमम कितने, 1/4 होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के। ऑन रिसिट ऑफ द अप्रूवल स्कीम द स्टॉक एक्सचेंज विल इशू शेयर्स टू द पब्लिक विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, जैसे उसको अप्रूवल मिलेगा तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, विद इन 12 मंथ्स शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को इशू करेगा, सो डैट एटलीस्ट 51% ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड विद पब्लिक अदर देन द शेयर होल्डर्स हैविंग ट्रेडिंग राइट्स। ठीक है, तो पब्लिक ने एटलीस्ट 51% जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, ताकि जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक की हो, ना कि जो उन शेयर होल्डर्स की जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स है। सेबी कैन एक्सटेंड द पीरियड अप टू 12 अनदर मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स का तो ड्यूरेशन हम ऑलरेडी इनको दे रहे हैं, प्लस सेबी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है बाय अनदर 12 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। तो इसके साथ हमने सेक्रा के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ if you like it, please hit the like button. Thank you.